गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आर वी लाइव ऑन यूट्यूब? नॉट येट. ऑल राइट, आई थिंक वी आर लाइव. Okay. So once again, very good afternoon. Due to some reasons, some technical reasons and some personal problems, we were not able to connect you live on the YouTube channel. But we are back again. And since many of you requested कि सर जो emotion वाला part था उसमें in exams they also ask so many questions related to brain, and there are some new theory also which have not heard या फिर हमने necessarily या बैरन में कहीं देखी नहीं, but उस समय question दिख गया MCQ में. So I thought कि let's have a one more session on emotions, because emotion is a very holistic topic. You can ask brain questions from the emotion, they can ask you the cognitive questions from the emotion, and they ask you obviously theory based questions. Alright, so emotion is something which is obviously important for the human being also and important for the exam part also. So in today's you will be revising some topics जो हम पहले डील कर चुके हैं, and again you will be getting to know some 2-3 more topics. As I've promised, every session of ours will be giving you some 2-3 new topics which will be bonus topic for like free of cost. Alright, so let's start with the question series. So first question is, which theory suggests that emotion arises from physiological responses to the external stimuli? And automatically questions आपके repeat होंगे. Just try to understand this thing. मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता है, obviously, right? It's like very easy. So I know कि आपको उसका आंसर पता है, but the point is कि आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इतनी अच्छी तरीके से आना चाहिए that if someone is asking you during your sleep also कि उठो इसका आंसर क्या होगा, then also you must be able to answer. तो ये क्वेश्चंस एकदम रटे होने चाहिए आपको, because इनमें आप किसी भी तरह की मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हो. Alright, so James Lange theory is the correct answer. Very good. Moving on. According to Cannon-Barth theory, which occurs simultaneously. Simultaneously कौन सा होता है? Physiological arousal and cognitive labeling, emotional experience and physiological response, stimulus perception, stimulus regulation, emotional regulation, cognitive appraisal and bodily changes. तो D और A तो नहीं हो सकता है. Some people might get confused between B and C कि emotional experience and physiological response and stimulus perception and emotional regulation. So अगर आपके क्वेश्चन में पूछा आता cognitive appraisal theory तो ऑप्शन C would have been a better choice, but since ये आपसे thalamic theory of emotion पूछ रहे हैं, Cannon-Barth theory is also known as thalamic theory of emotion, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B. Very good, option number B. Then which of the following best represents Shatter-Singer two-factor theory? As you know, मैंने बता रखा है कि two-factor theory of emotion is always Shatter-Singer theory, बिकॉज दो फैक्टर के आपके बहुत सारे होंगे, राइट? जेम्स लैंग, कॉग्निटिव अप्रेजल, प्राइमरी, सेकेंडरी, तो टू फैक्टर बहुत सारी चीज़ों में होंगे, बट द नेम टू फैक्टर थ्योरी इज रिलेटेड विद द शाटर सिंगर, राइट? तो इमोशन अराइजेस सोली फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जहाँ भी सोली, ओनली, राइट, इस तरह के ऑप्शन हो, जस्ट बी वेरी केयरफुल, देयर इज अ चांस कि वो ऑप्शन गलत हो सकते हैं. सोली या ओनली इस तरह के ऑप्शन अगर कहीं पे लिखे हुए हैं. Physiological arousal is interpreted based on the context to create emotion. All right. Emotions are predetermined by genetics. नहीं. Emotions are independent of cognitive factors. तो D तो हो ही नहीं सकता, obviously, right? C भी नहीं हो सकता. Genetics की कोई बात नहीं की थी, शार्टर सिंगर है. So obviously B is the right answer. So we label the emotion on the basis of context. In what context we are. इसको थोड़े से लोग मिसअंडरस्टूड कर देते हैं इस सेंस में कि सर कॉग्निटिव अप्रेजल में भी तो यही होता है. So cognitive appraisal says another thing about the similar object. So emotions को दोनों explain कर रहे हैं, but the way they are explaining is different as per cognitive appraisal theory given by Lazarus and as per Shatter-Singer theory, two-factor theory of emotion. तो दोनों चीज़ें सेम चीज़ को explain कर रही हैं, emotions को, how emotions are formed, but the difference is in their approach. What is the primary focus of cognitive appraisal theory of emotion? कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी का पहला प्राइमरी फोकस क्या है? अनकॉन्शियस प्रोसेस, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सिचुएशन कुड बी न्यूरल पाथवेज लिंक टू इमोशन, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस ऑन द इमोशन. सो सी डी नहीं हो सकता, ए तो डेफिनेटली नहीं होगा. देयर इज लाइक नथिंग रिलेटेड टू द अनकॉन्शियस और
साइकोडायनेमिक और एनीथिंग लाइक दैट, तो कोई भी इमोशन थ्योरी आपकी इससे रिलेटेड नहीं है आपके सिलेबस में। सो बचा क्या, एलिमिनेशन की टेक्निक यूज की हमने, ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन। व्हाट वी डू, इफ वी सी अ सिचुएशन देन वी इंटरप्रेट इट, वेदर दिस सिचुएशन इज समथिंग out of which we should feel a emotion, then we go to secondary appraisal that we should feel the emotions. Clear? तो स्ट्रेस का जो थ्योरी है, स्ट्रेस इज ऑल्सो इमोशन टाइप ना, तो ये आपका इसी से एक्सप्लेन होता है। देन विच ब्रेन स्ट्रक्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेसिंग ऑफ इमोशंस। कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस भी है, एमिगडाला भी है, थैलेमस भी है, हिप्पोकैम्पस भी है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया आप लोग, बिकॉज हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, amygdala is also a part of limbic system, but again what according to you is the most accurate answer? सबसे accurate क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ब्रेन पार्ट इमोशन प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, एमिगडाला इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, बट आउट ऑफ दीज टू क्या, और थैलेमस भी है, कैनन बार्ट की थ्योरी, थैलेमिक थ्योरी ऑफ इमोशन, तो कंफ्यूजन हो सकती है। एंड लेट मी टेल यू, हिप्पोकैम्पस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, एक्सटेंशन में इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं कभी कभी, तो सारी ही चीज़ें हैं, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्रूशियल रोल, राइट। तो ये सारे के सारे पार्ट इवेंचुअली दे आर कनेक्टेड with emotions anyhow, but the answer will be amygdala, fearful memories, right, fearful emotions, right। तो ये सारी चीज़ें आपकी amygdala में आती हैं। So the most accurate answer is B. Obviously सही सारे हैं, but the most accurate is B. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। Then what is the main idea of the facial feedback hypothesis? So facial feedback hypothesis का main rationale क्या है? What is the logic behind that? So facial expressions results from emotions. Emotions are influenced by the facial expressions. Facial expressions are unrelated to emotions, ये तो नहीं हो सकता, and facial expressions are culturally determined. Could be not. But सबसे ज़्यादा confusion आपको इसमें होगी ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर B। क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B, facial expressions result from emotions, या फिर emotions are influenced by the facial expressions. What could be the answer? B. Everyone is saying B. क्या लगता है भाई, सब लोग भी बोल रहे हो, चलो वंडरफुल, इट मीन्स प्रिपरेशन अच्छी सी हो रही है। इमोशंस आर इन्फ्लुएंस बाय द फेशियल एक्सप्रेशन, मैंने इसका एग्जांपल दिया था दैट इवन दो इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ यू जस्ट स्माइल, राइट, ऐसे एकदम स्माइल करके बैठे रहो, देयर अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी लिटिल बिट, राइट। दिस theory says your facial expressions send a feedback to the brain and they perceive some emotion. That's why the name is facial feedback hypothesis. ठीक, according to Plutchik's wheel of emotion, which of the following is the primary emotions? So as I've told you कि मैं आप लोग को रोज 2-3 न्यू कंसेप्ट बताऊंगा। So this concept is basically Plutchik's emotions model, ठीक है, wheel of emotion कहते हैं इनको। So he said that there are basically two types of emotions, primary emotions and secondary emotions. So इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको थ्योरी नहीं भी पता है ना तो भी यू कैन आंसर इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कॉमन सेंस। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करोगे, सो अगर आपको ये थ्योरी नहीं पता है देन ऑल्सो यू कैन आंसर इट, राइट। आई विल टेल यू व्हाट दिस थ्योरी इज। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी इमोशन, व्हाट इज आंसर नंबर सी, वेरी गुड, एंगर, राइट। अब थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया होगा तो यू कुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट मी टेल यू क्या होता है थ्योरी। सो प्लचिक्स व्हील ऑफ इमोशन इज बेसिकली, ही टॉक्ड अबाउट two types of emotions, primary and secondary. He said there are 8 types of primary emotions. 6 कौन से हैं जो आपके एकमैन वाले थे, यूनिवर्सल, राइट, वेरी गुड। तो आपके 6 तो बेसिक वाले थे, ही एडेड 2 मोर, कौन कौन से, वेरी गुड, यूट्यूब पे काफ़ी आंसर दे रहे हो आप लोग, राइट। सो ही एडेड बेसिकली 2 मोर इमोशंस, एक है आपका ट्रस्ट एंड एक है आपका एंटीसिपेशन, क्लियर। नहीं 6 बेसिक इमोशंस रहेंगे, ऑलराइट। ही एडेड 2 मोर, एंटीसिपेशन एंड ट्रस्ट। Trust is basically, he said that trust is the fundamental emotion based on human beings.
बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर सर्वाइविंग बिकॉज दे ट्रस्ट ईच अदर. तो ट्रस्ट इज द सोल पार्ट. तो ट्रस्ट एक उन्होंने ऐड किया प्राइमरी इमोशन में. एंड ही सेड एंटिसिपेशन. वी कैन एंटिसिपेट, वी कैन प्रिडिक्ट दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. है कि अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं तो वी कैन एंटिसिपेट दिस थिंग दैट ओके आवर एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी टफ, our performance is going to be very low. So we have this kind of anticipation कि हम थोड़ा सा एक expectation रख सकते हैं चीज़ों को लेके. This is anticipation. अब what are secondary emotions? These are little bit complex emotions. जैसे आपका guilt हो गया, envy, right, love, ये सब आपके complex emotions हैं. They are formed with the help of combination or combining the primary emotions. So जो आपका anger है that is a बेसिक इमोशन, प्राइमरी इमोशन अकॉर्डिंग टू प्लस 6. लेकिन बाकी तीन, मतलब तीन तो नहीं बोलूंगा, एनवी है, गिल्ट है, प्राइड इज नॉट समथिंग, ये सेल्फ कॉन्शियस इमोशन होता है, कॉम्प्लेक्स इमोशन ये भी होता है, बट ये प्लस 6 ने नहीं लिया था. ठीक, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इमोशंस? गुड क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है. ऑल्दो इजी लग रहा है बट समटाइम्स इन एग्जाम योर ब्रेन एक्चुअली डज नॉट वर्क प्रॉपरली. तो उस टाइम पे जो ऑप्शन नहीं लग रहा होता है ना, वो भी सही लगने लगता है, राइट. सो वी ऑफन थिंक कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसको क्या ही प्रैक्टिस करना है. बट जनरली दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस विच वी एक्चुअली मेक रॉन्ग चॉइसेस इन द एग्जाम हॉल. ठीक है, तो इसमें से कौन सा इमोशन का एक कंपोनेंट नहीं है? फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड जेनेटिक. क्या होगा? वेरी गुड. आंसर क्या होगा इसका? जेनेटिक. ऑलराइट, जेनेटिक इज द राइट आंसर. क्लियर? सो जेनेटिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर इमोशन. बाकी ABC कंपोनेंट होते हैं. फिजियोलॉजिकल मतलब अराउजल, बेसिकली अफेक्ट, राइट. सो दिस इज ABC कंपोनेंट. देन व्हाट इज द टर्म फॉर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एंड अदर्स इमोशन? बेसिक डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. अब इसमें गलत क्या कर सकते हो? लाइक दिस इज द लाइक इजीएस्ट क्वेश्चन, बट इसमें गलत करते हैं लोग. क्या? दे हैव द ऑप्शन, दे नो द ऑप्शन इन देयर माइंड, राइट, ऑप्शन नंबर बी. But while they are ticking the option in the screen, they tick like A or C or D. Because emotional resilience, emotional intelligence, just look at the ending, lience is somewhat similar. तो आपको लगेगा कि सर क्या बता रहे हैं, this is a silly mistake, right? People do commit these mistakes. तो जो भी ऑप्शन को टिक कर रहे हो ना, थोड़ा सा अवेयर रहना, कॉन्शियस रहना कि आप स्क्रीन पे क्या टिक कर रहे हो. बिकॉज समटाइम्स वी थिंक द करेक्ट आंसर, हमारे दिमाग में सही चीज़ होती है बट हम टिक कुछ और कर देते हैं. फिर हमको लगता है कि यार आंसर की आती तो हमें लगता है कि NTA कुछ झोल कर रहा है, उसने आंसर की गलत कर दी. सो NTA नहीं करता है ये सब, हम ही अनकॉन्शियसली सब चीज़ें कर देते हैं, राइट. सो दिस हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली. ठीक है, बहुत कॉमन होती है इस तरह की मिस्टेक्स. तो ये तभी सही होंगी जब आप MCQ को सॉल्व करोगे. क्लियर? ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 10. विच साइकोलॉजिस्ट इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द 2-factor थ्योरी ऑफ इमोशन? आंसर इज शार्टर. ठीक है, स्टैनले शार्टर. क्लियर? पॉल एकमैन क्या थे? यूनिवर्सल बेसिक इमोशंस. लजारस की कॉग्निटिव अप्राइजल थ्योरी. कार्ल रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर थेरेपी, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, वो वाला कंसेप्ट है उनका. अकॉर्डिंग टू एकमैन कितने मोस्ट बेसिक इमोशंस हैं? नाउ यू नो 6. क्लियर? देन व्हाट इज द टर्म फॉर कल्चरल रूल्स दैट गवर्न हाउ इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड? सो वो कौन से कल्चर रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपका जो इमोशंस होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? आई हैव टोल्ड इट इन द लास्ट सेशंस आल्सो. दीज आर बेसिकली योर डिस्प्ले रूल्स. तो कुछ लोग उसमें बोल सकते हैं कल्चर डायनामिक्स भी हो सकता है, राइट, बट आंसर इज डिस्प्ले रूल्स. दिस इज द करेक्ट टर्म फॉर दिस स्टेटमेंट, डिस्प्ले रूल्स. क्लियर? वेरी गुड. Then which hormone is most closely related to the stress induced emotional reactions? कौन सा हार्मोन होता है स्ट्रेस इंड्यूस इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए? कौन सा हार्मोन होता है आपका? कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन. विच इज द हार्मोन? राइट, इट इज द कॉर्टिसोल. वेरी गुड. कौन रिलीज करता है कॉर्टिसोल? कैन एनीवन टेल मी? Which brain part or which body part releases cortisol? Can anyone answer this? In the app, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी आंसर कर सकते हो. कौन रिलीज करता है कॉर्टिसोल को? बताइए भाई. वेरी गुड देवांशी. यूट्यूब पे बताइए भाई, यूट्यूब पर्सनालिटी बताइए. वेरी गुड वर्षिता. वर्षिता आज आप ऐप में नहीं कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो. Alright, very good. Adrenal cortex.
इट रिलीजेस कॉर्टिसोल. एड्रेनलिन मेडुला कौन सा रिलीज करता है? एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन, विच इज बेसिकली एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन. ठीक है. एड्रेनलिन को कौन सिक्रीट करता है, कौन स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. थ्रू विच हार्मोन? ACTH हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. सो इसी तरह से रिविजन हमारे MCQ बैच में होगा. इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको पूरी चीज़ें पढ़ाऊंगा, राइट. आई विल गिविंग यू द टास्क कि आज हम इस टॉपिक के MCQ सॉल्व करने वाले हैं. आई विल प्रोवाइड यू मटेरियल, आई विल टेल यू द रिसोर्सेज. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर अटेंडिंग द क्लास यू हैव टू रीड एवरीथिंग, राइट. देन वील सॉल्व द MCQs लाइव. फिर चेक होगा कि कितना आपने पढ़ा है एंड कितनी नॉलेज आपकी अपडेट होगी, सो दैट डे बाई डे आपका हर एक टॉपिक सीमेंट होता जाए. फिर आपको लुक उसको देख के पीछे ये ना सोचना पड़े कि आई एम लाइक लिटिल बिट लाइक अंडर कॉन्फिडेंट इन दैट टॉपिक. सो विल बी हैविंग लाइक 1500 plus MCQs विल बी टॉपिक वाइज. सो एवरी डे विल बी डीलिंग विद सो मेनी टॉपिक्स. एंड जो टॉपिक्स बहुत बड़े होंगे उसके लिए हम लोग 1-2 दिन आराम से रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है. इट विल टेक अराउंड 300 to 400 MCQs. सो वो डे वाइज होंगे कि हम किसको क्या कर रहे हैं. सम डे विल टेक correlations MCQ, someday we'll take NPC, everything related to NPC we'll solve on that thing also. Numericals का session होगा तो सारी चीज़ें होंगी. So if you want to join the batch, it will be starting from the first week of February, and right now it is starting. You are you will be getting the research and statistics live classes plus recordings. तो वो आपका बेस तैयार कर देगा, and afterwards you can continue to watch the recorded and the live classes for the MCQs. Alright. So आपको डाउनलोड करना है स्टडी कैपिटल ऐप, एंड यू विल गो ऑन द सेक्शन ऑफ CVT PG क्रैश कोर्स. वहाँ पे आप देखोगे मेरा कोर्स है, यू कैन बाय इट एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द राइट मोमेंट. व्हाट टाइप ऑफ इमोशन इज जेलेसी कैटेगराइज्ड एज? सो जेलेसी किस तरह का इमोशन होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, बेसिक और पॉजिटिव. पॉजिटिव तो नहीं ही होता है, राइट. सो इट इज बेसिकली अ व्हाट सेकेंडरी इमोशंस, because it is a combination of basic emotions. तो primary emotions जो आपके basic emotions है, someone will say 6, some theorists will say 8, some will say even 9 also. But generally you will understand by looking at the option कि हाँ यार ये तो basic है, ये तो primary है. But jealousy, envy, love ये सब आपके secondary emotions होते हैं. Clear? Then which theory of emotion emphasizes the role of thalamus? Very good Tanishq. आंसर क्या होगा? देखो मेरा एम यही होता है, आपको चीज़ें रट जानी चाहिए. यू मस्ट बी थिंकिंग सर एक ही क्वेश्चन को बाबा क्यों सॉल्व करें. नहीं सॉल्व करोगे तो यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना, यू विल बी नॉट एबल टू आंसर इट करेक्टली. वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी. सो जितने भी पेपर्स हैं आपके पास, ये नहीं कि सॉल्व कर लिया हाँ हो गया. हर एक क्वेश्चन को आपको, हर एक क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट आपको 4 से 5 बार सॉल्व करना है. दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 5 to 6,000 MCQs. अलग अलग नहीं होते हैं, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग देम, कीप सॉल्विंग देम. क्लियर? आंसर क्या होगा इसका? कैनन बार्ड. इन विच थ्योरी ऑफ इमोशन इज इमोशन कंसीडर्ड अ रिजल्ट ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस? सो इसमें से अनकॉन्शियस प्रोसेस इमोशन को कौन बोलता है? ऑब्वियसली साइकोएनालिटिक थ्योरी. अब स्पेसिफिकली फ्रॉइड ने इमोशंस की थ्योरी नहीं दी प्रॉपर, बट यू कैन, he has said a lot of things about the emotions based on the concept of eros, life instinct, thanatos, which is death instinct, ego, id, super ego. इनके combination से he has tried to explain the concept of emotions. Clear? Then which of the following is not a factor influencing emotions? So इसमें से कौन सा factor emotion influence नहीं कर रहा है? क्या होगा इसका आंसर? Biological factors, social norms, learning, history, weather patterns. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? टफ क्वेश्चन है ये. हाँ मुझे पता था. वेरी गुड, डी. अब जैसे ही आप डी सुनोगे सबको लगेगा सर ऐसा कैसे? इन समर आई फील वेरी इरिटेटेड, इफ लाइक आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, इफ आई एम फीलिंग वेरी यू नो लाइक वार्म, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है. सो इट विल अफेक्ट माई मूड. बट ये आपके मूड को अफेक्ट करता है, इमोशंस को नहीं करता है. So there is a difference between mood and emotions, right? Emotion is basically you are talking about the all three aspects: physiological arousal also, psychological also, and the behavioral part also, right? Mood is some kind of feeling. वो थोड़ा थोड़ा आपके mood states पे depend करता है. Clear? So biological factors आपके emotions को affect करेंगे कि आप बीमार हो नहीं हो, ये सब. Learning history, what type of behavior you have learned, what type of coping strategies you have, it will affect your emotions. कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ नेगेटिव बिहेवियर आपने सीख रखा है, तो यू विल स्टार्ट स्मोकिंग. स्मोकिंग करके आपको अच्छा लग रहा है,
but this is what a negative way, right? So weather pattern is generally which is not directly related to the emotions, it is somewhat related to the mood. क्या हाँ आपका मूड खराब है, that is not emotions. Then what type of emotion is gratitude categorized as? क्या होगा? Now you know कि इस तरह के जितने भी खतरनाक नाम लगते हैं that the answer will be what? Secondary emotions. Basic आपको पता है क्या है, right? So जितने भी खतरनाक ऐसे terms होते हैं ना, complicated emotions, they are generally secondary emotions. What does the term emotional contagion refers to? Now you know what is emotional contagion. Last video अगर आपने मेरा देखा होगा तो उससे रिवाइज हो गया होगा. What is spread of person from one person to another? If we see other people happy, we start to feel happy. बोलते हैं ना कि मेरे आस पास तुम आती मनूसियत आ जाती है. So whenever there are some negative people around you, इसको बोलते हो negative aura, negative vibe, right? So it will create negative emotions in you also. This is emotional contagion. Then last question, which theory highlights the importance of personal meaning in emotional experiences? So which of the following highlights the importance of personal meaning in emotional experiences? क्या होगा इसका आंसर बताइए भाई. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे आते हैं. वेरी गुड यूट्यूब वाले, ऑलराइट, वंडरफुल. ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी. क्यों? बिकॉज whatever this, maybe there is some situation which is highly stressful for one person, maybe that situation for me is like very chill, right? So it is basis, it is on the subjective appraisal, personal experiences, मेरे लिए वो situation कैसे मैटर कर रही है. So this is Lazarus cognitive appraisal theory. Alright, so I hope from this session आपका एक emotion का जो एक डर होगा कि इमोशन के MCQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आई होप यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया कि किस तरह के इमोशंस आते हैं. लाइक दिस विल बी सॉल्विंग मेनी मोर इमोशन क्वेश्चंस related to many more theories which can be asked in the bumper questions in our batches also. So see you soon tomorrow again with a new topic and with a new topic for revision. And again, as I promised, tomorrow also I'll be delivering you 2 new concepts based on the topic. Alright, so that आपको कहीं भी बुक्स से या किसी और जगह से उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ऑटोमेटिकली यहीं पे प्रिपेयर हो जाए वो चीज़. ऑलराइट, चलिए सी यू टुमारो. एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जो बैच में हैं उनके लिए आपको क्लास का टाइमिंग यू नो 7:50 PM पे. विल सी यू इन द ऐप.